So, hi guys, and welcome to our today's chapter, which is chapter number 4, year of geography, class number 7. So, now let us start our chapter. So, our chapter is basically about air, and we are make this super duper quick. We are making this super duper quick. What happened to my grammar? So, we are making this super duper quick because this would be like a sprint for your final exams. So, now let us start the chapter. Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called the atmosphere. That air surrounds our earth. This is the air, this is the blanket of air, and this blanket of air is called atmosphere. And all the living organisms depend on this atmosphere for their survival because ये air का blanket है. This is made up of air, and all living organisms need air for their survival. So that's why it is important, and it provides us air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun. So you have probably heard about ozone layer. आपने ozone layer के बारे में तो ज़रूर सुना होगा. तो basically ozone layer ना atmosphere का ही आप एक पार्ट सा कह लो इसको. तो क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल जो रेज होती है, जो यूवी रेज होती है सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. सो एटमॉस्फेयर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है. We will be baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during the night. And this atmosphere also regulates the temperature of the earth because this protects us also from the excessive heat and also from the excessive cold at night. So this also regulates the temperature, and so it is a mass of air that has made temperature on earth livable. Okay, इससे ही due to atmosphere we can live on earth because it regulates the temperature, and if it is not present on the earth's on the earth's surrounding, then we will be baked alive. हम लोग मतलब alive मतलब जिंदा ही पक जाएंगे हम लोग अगर ये नहीं होगा, because there is so hot during the day. So carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect. So when we release CO2 or carbon dioxide in the air, what happens that it creates a greenhouse effect. मतलब जो आपकी carbon dioxide, your CO2 gas traps carbon dioxide, traps heat. आई वॉन्टेड टू से ट्रैप्स हीट. जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एयर है वो क्या करती है, वो हीट को ट्रैप कर लेती है, एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस. विदाउट इट अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन. हाउएवर व्हेन इट इज लेवल्ड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और अदर फ्यूम्स, द हीट रिटेन इंक्रीजेज एंड टेम्परेचर ऑफ अर्थ. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. सो बेसिकली आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना तो पक्का होगा, बट व्हाट इज़ बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग. एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है ना, जो आपका ग्रीन हाउस जो मैंने इफेक्ट बोला, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपकी होती है वो हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से जो कोल्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा कोल्ड नहीं होता है अर्थ पे, एंड इसी वजह से एक टाइप से बोल सकते हो कि आप जो टेम्परेचर है ना वो रेगुलेटेड रहता है. बट ड्यू टू टूडेज एक्टिविटीज़ लाइक फैक्ट्रीज से जो भी धुआं वगैरह आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड इसीलिए जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड जो हीट है वो बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाती है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है. इसीलिए हम लोग इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. एंड जो स्नो है, कोल्डेस्ट पार्ट मतलब जो कोल्ड पार्ट में भी हीट ट्रैप हो रही है, तो फिर क्या हो रहा है, जो स्नो है आपकी वो मेल्ट हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, मतलब बिकॉज वो ओवरफ्लो हो जाते हैं ना, रिवर्स जो आपकी आइस मेल्ट होकर पानी बन जाते हैं, तो उसकी वजह से फ्लड्स कॉज होते हैं कोस्टल एरियाज़ में. मतलब बहुत सारे मतलब बुरे चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में. सो okay, composition of the atmosphere, that what is atmosphere made up of and what is a composition of atmosphere. So basically, do you know that the air we take in while is actually a mixture of many gases. that जो हम air अपने अंदर लेते हैं, it is not only a mixture of oxygen, it is not only oxygen, there are more various gases present in the atmosphere which make up the bulk of atmosphere. bulk का मतलब you can say base of the atmosphere. So carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are in lesser quantities. That CO2 और you can say helium जो आपकी हाइड्रोजन वगैरह ये सब थोड़ी सी कम मात्रा में होती है, बट डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत मतलब स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बट नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस के सबसे ज़्यादा. यू कैन सी द पाई चार्ट हेयर. तो अगर मैं ऐसे बताऊँ तो ये जो पार्ट है ना आपका, ये मतलब बाकी गैसेस के लिए बचा, ये जो आपका इतना पार्ट है ये किसने कवर कर रखा है, नाइट्रोजन ने कवर कर रखा है. आई कैन टोटली से कि अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें अपने एटमॉस्फेयर को, सो क्या होगा, जो ये 3 पार्ट्स है ये नाइट्रोजन को ही चले जाएंगे, बिकॉज ये 78%
नाइट्रोजन ने कवर किया हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर, एंड जो बाकी का हिस्सा है वो किसके लिए बच जाएगा, ऑक्सीजन के लिए, एंड जो इतना सा हिस्सा है वो किसके लिए बच जाएगा, बाकी गैसेस के लिए। ओके, बिकॉज जो इतना सा जो 21% हिस्सा है वो किसके लिए बच गया, इसके लिए बच गया नाइट्रोजन। तो अभी लेट अस ऐड अप ऑल ऑफ दीज। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ 8 + 1 9, 7 + 2 9, है ना। हाँ, तो 99% तो सिर्फ जो 1% है वो किसके लिए बचा, 1% है वो किसके लिए बचा, अदर गैसेस के लिए। एंड एक्चुअली पॉइंट में भी आगे होता है 21 पॉइंट कुछ इतना होता है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट कवर करके रखा है, ठीक है। सो द पाई चार्ट गिव्स यू परसेंटेज डिफरेंस। अभी देखो सबके बीच में मतलब आपको परसेंटेज डिफरेंस दिख रहा है ना। सो हम जब इनहेल करते हैं हम मतलब थोड़ी सी नाइट्रोजन भी लेते हैं, बट ज़्यादातर तो हम जो है ऑक्सीजन ही लेते हैं। एंड लंग्स एंड एक्सहेल इट, तो हम लोग उसके एक्सहेल भी कर देते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन हमारे काम की नहीं है तो हम लोग उसे एक्सहेल भी कर देते हैं। बट जो प्लांट्स हैं उनके लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ इट नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स? दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। देखो हमने ये साइंस के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वी हैव स्टार्टेड दिस इन अ साइंस चैप्टर। साइंस की वीडियो हमने बनाई थी एक, अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके देखो उसे। दिस इज़ वेरी नॉलेजेबल दैट जो आपकी नाइट्रोजन गैस है ना वो प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते, दे कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली। उन्हें मतलब उनके रूट्स में ना, जो उनके रूट्स और होते हैं उनमें स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वी कॉल देम वी कॉल देम बैक्टीरिया। उनके मतलब जो रूट से और होते हैं उनके उन पे बैक्टीरिया चिपके हुए होते हैं, और यू कैन से बैक्टीरियाज आर अटैच टू रूट। सो व्हाट हैपेंस, दे टेक नाइट्रोजन इन फ्रॉम द एयर एंड इन चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। सो व्हाट हैपेंस कि जो उसकी फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है उस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी जाके देखो, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इफ़ यू वांट इट। सो जो क्या होता है अभी देखो, जो आपकी बैक्टीरिया है ना क्या करती है, वो नाइट्रोजन गैस एक बार एब्जॉर्ब कर ली उसने तो वो उसकी फॉर्म चेंज कर देती है, बिकॉज वो डायरेक्टली जो नाइट्रोजन की जो ओरिजिनेटेड फॉर्म, जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उस फॉर्म में वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकते आपके प्लांट्स। इसीलिए जो बैक्टीरिया है वो उसकी फॉर्म चेंज कर देती है एंड फिर जो प्लांट्स है वो ले लेते हैं, ठीक है। अभी ये बैक्टीरिया कौन सा होता है ये हमने पढ़ा था, दिस बैक्टीरिया इज रहीजोबियम। बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो वाली, आप लोग जाके देख सकते हो। रहीजोबियम, ठीक है। तो रहीजोबियम है इस बैक्टीरिया का नाम एंड ये अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस के जो 21% है वो जाती है ऑक्सीजन को आफ्टर द 78% ऑफ नाइट्रोजन। सो जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस इन द वर्ल्ड, गैस इन द एटमॉस्फेयर। अगर हम लोग अपने हिसाब से बात करें प्लांट्स एंड एनिमल्स के हिसाब से, तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर अस। ओके, सो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन अपना जो जब वो रिस्पायर करते हैं नहीं, रिस्पायर नहीं, जब वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, जब वो सिंथेसाइज करते हैं, हाँ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे भी एक वीडियो बनी हुई है, आप लोग देख सकते हो जाके हमारे चैनल पे। जब आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है उस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो है ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है एंड फिर इस वे में क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एंड अगर हम लोग ट्रीज़ को कट कर देते हैं तो ये जो है आपका जो डिफरेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब का मतलब जो आपके ट्रीज़ ही तो प्रोड्यूस करते हैं ना, तो इसीलिए क्या होगा, अगर ट्रीज़ कट कर दिए जाएंगे तो जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम रिलीज़ होगी एंड सो दैट जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो उसमें मतलब बदलाव आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इंपॉर्टेंट गैस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है बिकॉज वो फूड अपना कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से अगर प्लांट्स अपना फूड बनाएंगे तभी जो है O2 यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड एक और पॉइंट है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। ये जो हम रिलीज़ कर देते हैं ना, जो हम लोग एनिमल्स एंड प्लांट्स रिलीज, जो हम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो भी रिलीज़ करते हैं CO2 अपने रेस्पिरेशन के और ब्रीदिंग के प्रोसेस के ड्यूरिंग, तो क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं वो भी उतना ही यूज़ करते हैं। मतलब इसी वजह से इक्विलिब्रियम बना रहता है कि मतलब जितना हम लोग रिस्पायर करें वो भी उतना सा ही, मतलब उतनी सी परसेंटेज, सेम सी परसेंटेज ही वो भी यूज़ कर लेते हैं अप्रॉक्स। सो इस वजह से एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। एंड हाउ एवर मतलब अपसेट का मतलब कि डिस्टर्ब हो जाता है ये बैलेंस अगर हम लोग बर्न करते हैं, फ्यूल्स को बर्न करते हैं। अब देखो आपने एक चीज़ देखी, एक चीज़ नोटिस करो कि जो सारी जो आपकी
गैसेज है वो किसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ट्रीज़ को कट करोगे ऑक्सीजन डिप्लेट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप क्या करोगे अगर बर्न करोगे फ्यूल्स को, जो हम करते हैं, अगर आप लोग बर्न करते हो फ्यूल्स को, जो आप आग वगैरह जलाते हो तो उसमें क्या होता है, CO2 रिलीज़ होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, जब कोल एंड ऑयल भी आप लोग बर्न करते हो तभी भी होता है, एंड फिर क्या होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज़ कर देते हैं, एंड इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो अफेक्ट कर रहा है वेदर एंड क्लाइमेट को। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था ना, तो उसकी वजह से क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट हो रहा है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, के जो स्ट्रक्चर ढांचा है हमारे एटमॉस्फेयर का वो क्या है। सो बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ लेयर्स. These layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Most important question of this chapter, that how many layers are there in atmosphere. ये बहुत ज़्यादा important है, आपको याद रखना पड़ेगा. troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Okay. So firstly we will study in detail of troposphere. So basically जो troposphere है ना, here you can see the diagram. So basically what is troposphere, जो आपका troposphere है वो तो आप लोग ऐसे समझ लो कि सरफेस के सबसे ज़्यादा जो नज़दीक है वो ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसकी जो एवरेज हाइट है वो है 13 किलोमीटर की, ये है आपका उसका सरफेस, एंड इससे 13 किलोमीटर जो है आपकी हाइट है एयर कैरिंग, 13 किलोमीटर नहीं, इससे ज़्यादा ही होगी, आई डोंट नो। द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट हेयर, कि जो हम एयर ब्रेथ करते हैं वो इसी लेयर में होती है, अगर ये लेयर नहीं होगी तो हम लोग ब्रेथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना, रेन भी यहाँ पे होती है, ठीक है, क्लाउड वगैरह भी यहीं पे होते हैं, जो फॉग वगैरह, जो भी धुंध वगैरह, या भी जो भी हेल स्टॉर्म्स, जो भी तूफान वगैरह आते हैं वो सारे इसी लेयर में आते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। स्ट्रैटोस्फीयर, सो बेसिकली व्हाट इज़ द स्ट्रैटोस्फीयर, आपको याद रखना पड़ेगा, सबके फंक्शंस इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर हम लोग फिर से क्विक रिकैप ले लेते हैं, दैट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये 13 किलोमीटर इसकी हाइट है, एंड द एयर जो हम ब्रेथ करते हैं वो इसमें एग्जिस्ट करती है, एंड जो सारे वेदर फिनोमिना है इसमें ही हैपन होते हैं। स्ट्रैटोस्फीयर, सो बेसिकली स्ट्रैटोस्फीयर जो है अबव द ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर ये है आपका ट्रोपोस्फीयर, ये आपका स्ट्रैटोस्फीयर, मतलब इतने डिस्टेंस के बिटवीन ये आपका ट्रोपोस्फीयर है, ये आपका स्ट्रैटोस्फीयर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको हाइट दी हुई है किलोमीटर की, अभी देखो यहाँ पे 10 के नज़दीक है, मतलब जो आपका ट्रोपोस्फीयर है वो हमने 13 किलोमीटर दिया था, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो आपका ट्रोपोस्फीयर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। वैसे कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, बट ये अप्रॉक्स है। सो ट्रोपोस्फीयर के अबव जो है आपका स्ट्रैटोस्फीयर लाई करता है, एंड ये जो है 50 किलोमीटर इसकी हाइट है, यू कैन सी हियर 50 स्ट्रैटोस्फीयर, तो यहाँ पे ये आपका स्ट्रैटोस्फीयर आ जाता है। एंड दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, मेकिंग कंडीशंस मेक फॉर आइडियल फॉर फ्लाइंग प्लेन्स, कि जो इसमें क्लाउड्स वगैरह मतलब इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, वो फ्री होती है क्लाउड से। जब भी आप किसी प्लेन में बैठोगे ना, तो ये ज़रूर याद रखना कि आप स्ट्रैटोस्फीयर में उड़ रहे हो, यू आर फ्लाइंग इन द स्ट्रैटोस्फीयर, वहाँ पे कोई भी क्लाउड्स नहीं होते, क्लाउड्स नीचे रह जाते हैं, बिकॉज जो मेनली आपके जो क्लाउड्स होते हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ही होते हैं। ओके, तो क्या होता है, जो भी अभी देखो यहाँ पे ना क्लाउड है, यहाँ पे ना कोई वेदर फिनोमेना हैपन होता है, तो फिर इसलिए क्या होता है, ये जो है प्लेन्स वगैरह फ्लाई करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, जब भी प्लेन्स वगैरह फ्लाई होते हैं तो यहीं पे होते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई वेदर फिनोमेना नहीं है जिससे डिस्टर्ब हो सके। एंड one important feature of stratosphere is that it contains ozone gas, इसीलिए यू हैव टू रिमेंबर इट कि जो आपका स्ट्रैटोस्फीयर है उसमें जो आपकी ओजोन लेयर है, ओजोन गैस है वो प्रेजेंट है। ओजोन लेयर बेसिकली है क्या, इट इज़ अ लेयर ऑफ एयर, एयर की लेयर है ना, पता नहीं, वो एक लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो सन की जो भी यूवी रेज होती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ we just learned that how it protects us from the harmful effect of sun rays, आपको ये तो पता ही होगा कि वो हमें प्रोटेक्ट करती है सन के हार्मफुल रेज से। So now we will study about the mesosphere, which is the third layer of the atmosphere, ये वाली आपकी mesosphere, it is situated I think 80 किलोमीटर पे, हाँ 80 किलोमीटर पे है, and this layer is the third layer of the atmosphere, पहली होगी आपकी troposphere, second stratosphere, and this is the third layer which is the mesosphere, and ये लाई करती है, it extends up to the height of 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर इसकी हाइट है, एंड जो मीटियोरॉइड्स है ये इस लेयर में बर्न हो जाते हैं, मीटियोरॉइड्स इस लेयर में बर्न हो जाते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, मीटियोरॉइड्स इस लेयर में बर्न हो जाते हैं, एंड
कीप एंटरिंग फ्रॉम स्पेस, कि इसी लेयर में जो आपने देखा होगा जब भी मीटेरॉइड्स वगैरह जो भी रॉक्स वगैरह आते हैं अर्थ की सरफेस से गिरते हैं तो वो इस जगह पे मतलब उनको आग लग जाती है, हीटअप हो जाते हैं इस लेयर में। द नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फीयर। व्हाट इज़ द थर्मोस्फीयर? थर्मोस्फीयर का क्या मतलब है? थर्मोस्फीयर में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, कि जो आइनोस्फीयर होता है वो पार्ट है इस लेयर का, एंड इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। 80 to 400 किलोमीटर इसकी हाइट है। एंड फिर क्या होता है, ये मतलब रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। जो रेडियो मतलब जो भी आपकी कम्युनिकेशंस वगैरह होती है ना, वो यहीं पे हैपन होती है, रेडियो ट्रांसमिशंस। एंड इनफैक्ट जो रेडियो वेव्स है वो ट्रांसमिट होती हैं अर्थ से। अभी देखो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सैटेलाइट्स के मतलब ऐसे पैनल से लगे होते हैं जो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो रेडियो वेव्स आ रही हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं वो वेव्स को टुवर्ड्स द अर्थ बाय दिस लेयर एक्सोस्फीयर। सो व्हाट इज़ द एक्सोस्फीयर? सो बेसिकली ये अपर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की, जिसको हम लोग एक्सोस्फीयर बोल देते हैं। एंड ये जो लेयर है इट इज़ वेरी थिन एयर। थिन एयर मतलब लाइट गैसेस, बहुत ही ज़्यादा लाइट गैसेस होती है, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह, एंड ये फ्लोट करते हैं। मतलब ऐसा समझो कि ज़्यादातर ये जो आपकी लेयर है वो ज़्यादातर स्पेस में ही होती है। सो लेट अस टेक अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द लेयर्स। अभी देखो ट्रोपोस्फियर में क्या था, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। इसमें सारे वेदर फिनोमेना हैपन होते हैं। इसकी हाइट है 50 किलोमीटर, सॉरी इसकी हाइट है 13 किलोमीटर। एंड गैस जो हम ब्रेथ करते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें सारे वेदर फिनोमेना हैपन होते हैं, फॉग, हेलस्टॉर्म वगैरह। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ये ट्रोपोस्फीयर के अबव होता है, इसकी हाइट है 50 किलोमीटर। ये लेयर मतलब क्लाउड्स वगैरह एंड वेदर फिनोमेना से फ्री है, इसलिए इट इज़ द मोस्ट सूटेबल टू फ्लाई प्लेन्स। एंड इसमें ही ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, जो आपकी ओजोन गैस है जो हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। मीजोस्फीयर में क्या होता है, ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसकी जो हाइट है वो है 80 किलोमीटर। एंड जो मीटेरॉइड्स होते हैं वो यहाँ पे आके बर्न हो जाते हैं। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो राइज कर जाता है। एंड ये मतलब 80 to 400 किलोमीटर्स की हाइट है। एंड जो लेयर होती हैं वो हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं। इनफैक्ट जो रेडियो है उनकी जो वेव्स होती है वो यहाँ पे क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द अर्थ। एक्सोस्फीयर ये टोटली स्पेस में ही रह जाती है आपकी जो ये लेयर है एयर की। एंड ये क्या है, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट, कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है। आई थिंक आज की वीडियो बहुत लंबी होगी, चलो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट का क्या मतलब है कि इज इट गोइंग टू रेन टुडे, विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम द एंशियस क्रिकेट फैंस स्पेक्टेकुलेटिंग द फीट ऑफ अ वन डे मैच। सो बेसिकली आपने सुना होगा फ्रॉम द क्रिकेट फैंस, फ्रॉम द एंशियस क्रिकेट फैंस, बिकॉज क्रिकेट मैचेस कैंसिल हो जाता है वेदर की वजह से। तो क्या आज सनी होगा, आज क्लाउडी होगा, क्या होगा? तो इसलिए क्या होता है, वेदर इज़ द आर टू आर चेंज। कि बेसिकली वेदर होता क्या है, ये होता है आर टू आर चेंज। कि आर टू आर जैसे चेंज हो रहा है कि अभी मतलब रेन हो रही है, आर टू आर डे टू डे कंडीशन के मतलब आर टू आर के घंटे घंटे में चेंज हो जाता है, डे टू डे दिन दिन में चेंज हो जाता है। मतलब आज के दिन मतलब मान लो क्लाउडी होगा, कल के दिन सनी होगा, तो इसको ही हम लोग वेदर बोल देते हैं, ठीक है। एंड अ प्लेजेंट ब्रीजी वेदर मे बी चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। एंड वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। एंड क्या होता है, one day it is cloudy and one day it is sunny, so it is the day to day change which can change any day. And okay, now however the average weather condition of a place for a longer period of time, for example if a certain weather condition of a place last for a longer period, it is known as climate, वो उसको हम लोग climate बोल देते हैं। and of a place, now do you understand why we have daily weather forecast, क्यों हमें weather forecast daily मिलते हैं? because day to day R to R ये change होता रहता है जो weather होता है। temperature, so basically what is the temperature? जो temperature है वो आप जो आप feel करते हो, which you feel, the temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere। अभी ये हमने जो पढ़ा था ना, ये हमने हीट एंड टेम्परेचर का एक आपको साइंस में भी लेसन है जिसकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग प्लीज़ 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 जाके सारी वीडियोस देखो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो टेम्परेचर है आपका एटमॉस्फेयर का, वो सिर्फ चेंज मतलब डे एंड नाइट के बिटवीन भी नहीं होता, बट सीज़न टू सीज़न भी होता है, मंथ टू मंथ भी
हो सकता है सीज़न टू सीज़न भी होता है. फॉर एग्जांपल अभी समर सीज़न है, अभी विंटर सीज़न आने वाला है ना. सो समर्स आर हॉटर देन विंटर्स, कि समर जो है वो हॉट होते हैं विंटर में. सो दैट यू कैन से कि जो समर में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इट इज़ हाई. ओके, सो an important factor that influences the distribution of temperature is insolation. So basically what is insolation? Insolation is the incoming solar energy intercept by the earth, कि जो सोलर एनर्जी है, ओके, तो जो सोलर एनर्जी है जो अब्जॉर्ब कर रही है हमारी अर्थ, इंटरसेप्ट जो ऑब्जर्व कर रही है हमारी और जो सन से आ रही है, उसको हम लोग इंसोलेशन बोल रहे हैं, कि हमारी जो अर्थ है वो कितना ऑब्जर्व कर रही है. तो इंसोलेशन भी अफेक्ट करती है, बिकॉज अगर वो ज़्यादा इंटरसेप्ट करेगी, वो ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. ओके, एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये तो हमने पढ़ लिया. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम, अभी देखो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होती है, इक्वेटर में होती है. ये हमने बहुत बार पढ़ा है, इक्वेटर में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. एंड जो है पोल्स में ठंड होती है, बिकॉज वहाँ पे जो आपकी इंटरसेप्शन, जो आपकी अब्जॉर्ब जो करती है ना, जो अर्थ होती है वो कम अब्जॉर्ब करती है, एंड देयरफॉर जो टेम्परेचर है वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. अभी आपको पता चला कि जो पोल्स है वो स्नो से क्यों कवर्ड रहते हैं. इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म सम क्रॉप्स टू गो. एंड अगर टेम्परेचर है वो हायर है, देखो अभी हायर क्यों है टेम्परेचर, जो है सिटीज़ का हायर क्यों होता है, विलेज में थोड़ा सा कूल सा टेम्परेचर होता है. वाई इज़ दैट? बिकॉज जो टेम्परेचर होता है वो सिटीज़ में वो कॉन्क्रीट एंड मेटल बिल्डिंग्स की वजह से ज़्यादा होता है. एंड अ सैफलट ऑफ रोड्स, क्या है ये, सैफल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे. तो क्या होता है, जो ये जिस मेटल एंड जो मटेरियल से ये बने होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरसेप्ट कर लेते हैं हीट, वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं. एंड फिर क्या होता है, ये जो हीट वो अब्जॉर्ब कर दे तो वो नाइट के टाइम उसको रिलीज़ कर देते हैं. इसीलिए जो ये है ज़्यादा हीटेड रहती है, जो सिटीज़ होती है वो ज़्यादा हीटेड होती है विलेजेस से. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. And also, what happens that the buildings that raise too high in the sky, they also increase the temperature, air pressure. So basically, what is air pressure? कि जो एयर हम पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, इट इज़ air pressure. And air pressure is defined as a pressure exerted by the weight of air on the earth surface. कि जो एयर का वेट है उससे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, that we call air pressure. Okay, and however we don't even feel it, हम लोग उसको फील नहीं कर सकते, बिकॉज जो हमारी बॉडी है वो डायरेक्शन जो है हमारी काउंटर प्रेशर मतलब इक्वल प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर से एग्जर्ट कर रही है, इसलिए हम लोग वो फील नहीं करते हैं. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एग्जर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. कि जो अर्थ सरफेस पे जो वेट होता है एयर का, उससे जो टेम्परेचर एग्जर्ट होता है उसको हम लोग एयर प्रेशर बोल देते हैं. And horizontally the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. कि जो आपकी एयर एक गिवन प्लेस, एयर के मतलब कितना टेम्परेचर, ये भी साइंस में मतलब वीडियो बनाई हुई है, ये भी मैंने साइंस में वीडियो बनाई हुई है कि जो आपकी जो हॉट एयर है वो क्या होती है, वो लाइट होती है. हॉट एयर लाइट होती है इसलिए वो कम प्रेशर एग्जर्ट करती है. एंड जो आपकी कोल्ड एयर होती है वो ज़्यादा हैवी होती है, इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसका वेट ज़्यादा होता है. ओके, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद जो क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, या फिर और यू कैन से ह्यूमिड वेदर बोल सकते हो. एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, इसीलिए लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये भी साइंस के चैप्टर में आया था. एक्चुअली जियोग्राफी एंड साइंस आर काइंड ऑफ सेम, नो. इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड. अभी जिस एरिया में लो टेम्परेचर होगा वो एयर है वो कोल्ड होगी. एंड जो हैवी एयर है, ये भी हमने पढ़ा था, हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया. कि जो हैवी एयर है वो सरफेस के नज़दीक ही रहती है, इसलिए जो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है. एंड हाई प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद सनी स्काइज. जो सनी स्काइज होती है उससे एसोशिएट की जाती है. एंड द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई एयर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज. इससे ही जो आपका हमारा एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का, जिसके बारे में हमने साइंस में पढ़ा था कि हमेशा जो टेम्परेचर जो भी आपकी एयर वगैरह होती है वो क्या होता है, हमेशा कुछ भी पढ़ोगे वो हायर प्रेशर से हमेशा लोअर प्रेशर तक मूव करती है. विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड. ये हमने पढ़ा हुआ है, आई थिंक
विंड वाले चैप्टर में आई थिंक वी हैड अ टेम्परेचर कॉल्ड विंड. तो इसमें क्या होता है, आई एम गोना एक्सप्लेन यू. अभी क्या होता है, जब आपकी हाई प्रेशर एरिया है टू लो प्रेशर एरिया, इसको ही हम लोग विंड बोलते हैं. तो यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लो ड्राई लीव डाउन द पेमेंट और अप टू ट्रीज ड्यूरिंग अ समर. समटाइम्स व्हेन विंड ब्लोज जेंटली यू कैन सी इट इवन ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट. तो हम लोग मतलब देख नहीं सकते विंड को, बट हम लोग फील कर सकते हैं. यू कैन लाइक अब्जॉर्ब दैट, ऑब्जॉर्व नहीं, ऑब्जर्व, कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो जब भी पत्ते हिलते हैं तो मतलब हवा चल रही है, जब भी स्मोक वगैरह यहाँ से वहाँ मूव कर रही है तो वो विंड चल रही है. ठीक है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस. इट इज़ नॉट काइंड ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे, कि जब भी विंडी डे होता है, जब भी वहाँ पे सर्दी वगैरह होती है तो मतलब आप लोग होल्ड नहीं कर पाते हो अच्छी तरह से अम्ब्रेला को. अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप फ्रॉम विच इट ब्लोज, द विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन, कि जहाँ जिस डायरेक्शन से वो ब्लो कर रहा है. तो क्या होता है, जो विंड जिस डायरेक्शन से ब्लो करती है उसको हम लोग उसकी मतलब बेस पे नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू कि द विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली, कि जो विंड ब्लो होती है वेस्ट से उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्ली. एंड अगर मैंने इसको वेस्टर्ली बोला तो जो विंड ब्लो होती है ईस्ट से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्ली बोल देते हैं. ओके, think of some other examples when strong winds have created problems for you. कि wind मतलब जो काफ़ी टाइप्स में डिवाइड की जा सकती है, 3 टाइप्स में डिवाइड की जा सकती है, विच इज़ परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड. सो वी विल स्टडी अबाउट दैम. परमानेंट विंड क्या होती है, जो ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज. हमने वेस्टर्लीज के बारे में पढ़ा था. वेस्टर्लीज मतलब जो विंड ईस्ट से ब्लो करती है, दैट आर ईस्टर्लीज. एंड जो विंड वेस्ट से ब्लो कर देती है दैट इज कॉल्ड वेस्टर्लीज. एंड ये जो वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज होती है, दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, कि पूरी ईयर थ्रू आउट द ईयर ब्लो करते हैं, इनका कोई भी नियमित टाइम नहीं होता. दे ब्लो आउट थ्रू द ईयर. सीजनल विंड्स ये सीजन टू सीजन आते हैं. कि सीजन जो मानसून होती है, मानसून जिसको हम लोग विंड बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं. अभी देखो वेस्टर्ली ईस्टर्ली पूरे मतलब साल ब्लो करता है. ये जो आपकी सीजनल विंड है ये सीजन्स में होती है, अलग अलग सीजन्स में होती है. देखो मॉनसून इंडिया वो तो कुछ महीने का होता है, सो यू कैन टर्म इट एज मंथ. एंड फिर क्या होता है लोकल विंड, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, कि जो स्मॉल एरिया में ही ब्लो करती है. फॉर एग्जाम्पल लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज बोल सकते हो. डू यू रिकॉल हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू. जो नॉर्दर्न हमारे जो प्लेन्स होते हैं उसमें क्या होता है, जब हॉट विंड ब्लो करती है उसको हम लोग लू बोलते हैं, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड जो स्मॉल एरिया के ऊपर ब्लो कर रही है. बहुत लंबी हो गई आज की वीडियो, चलो कोई नहीं. मॉइस्चर हमारा थोड़ा सा चैप्टर बचा है. ओके मॉइस्चर. सो व्हाट इज मॉइस्चर, कि जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज वो वाटर वेपर में बदल जाता है. एंड मॉइस्चर इन एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी. तो मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी आर सम काइंड ऑफ यू कैन से दैट रिलेटिव टर्म्स है. जो जब भी आपका मॉइस्चर अगर एयर में प्रेजेंट है, मॉइस्चर क्या हो गया, वो तो वाटर वेपर आप लोग बोल सकते हो. जो मॉइस्चर आपका एयर में प्रेजेंट होता है किसी भी समय उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट ह्यूमिडिटी. ओके ओके, व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे. कि जब एयर मतलब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होता है उसमें हम लोग उसे ह्यूमिड डे बोल देते हैं, बिकॉज उसमें ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है. As the air gets warmer, its capacity to hold water vapor increases and so it becomes more and more humid. तो क्या होता है, जैसे जैसे जो आपकी एयर है, अभी देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि मॉइस्चराइज होती है. जो आपकी स्किन है वो ऑलरेडी मॉइस्चराइज होती है समर में. क्यों, क्योंकि उसमें एयर वार्म होती है एंड वो ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड करके रखती है. इसीलिए जो सर्दियों जो आपकी गर्मियों की ड्यूरिंग आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं लगाते हो, बिकॉज ऑलरेडी योर स्किन इज सो मॉइस्चराइज्ड. ओके, ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई. जब भी ह्यूमिड डे होता है क्लोथ ज़्यादा लेते हैं टाइम, बिकॉज उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होता है ना, और वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है जो वाटर वेपर होता है आपके जो वाटर होता है आपके क्लोथ्स में. When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses and causing formation of droplets of water. वो droplets form कर देता है एंड फिर क्या होता है, यही droplets of water clouds form कर लेती हैं. एंड ये जो droplets है वो हैवी हो जाती हैं अर्थ पे आ जाती हैं. ठीक है, इस प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में अर्थ पे आ जाती हैं. एंड जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम. ये आपने नोटिस किया होगा जब भी आप प्लेन्स वगैरह को जाते हुए देखोगे तो आपने क्या नोटिस किया है कि वो ना पीछे क्या छोड़ देते हैं, वाइट सी ट्रेल छोड़ जाते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज इट,
ये है आपका मॉइस्चर जो उनके इंजन से बाहर आ जाता है एंड वो कंडेंस कर जाता है, एंड इसीलिए हम लोग कंडेंस मतलब छोटे छोटे से क्लाउड से देखते हैं, हम उन्हें क्लाउड्स की तरह देखते हैं ना, तो वो वाटर वेपर, तो वो मॉइस्चर ही होता है जो रिलीज़ किया जाता है उनके इंजन से, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग कंडेंस मॉइस्चर देखते हैं उनके पीछे, एंड वहाँ पे कोई भी एयर नहीं होती है बिकॉज वो किस में, हाँ अभी यहाँ पे आपका काम आ रहा है, बिकॉज देखो वो स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में मैंने आपको बोला था कि कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं है, कोई भी एयर वगैरह नहीं होती है, इसलिए क्या होता है कि जो आपकी वहाँ पे जो मॉइस्चर है उसको हिलाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो काफ़ी टाइम तक वहीं ही रहता है ना। व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन है जो आपकी अर्थ पे लिक्विड फॉर्म में आता है ना, रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड जो रेन है मतलब जो वाटर होता है वो ज़्यादातर रेन वाटर के रूप में ही आता है, इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर। एंड जब ट्रीज मतलब हिल स्लाइड्स एंड कट when trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountain and can cause flooding of low lying areas। तो क्या होता है जब हम लोग ट्रीज़ को कट करते हैं तो सॉइल को होल्ड नहीं कर पाते हैं ट्रीज़, इसलिए वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं वाटर, इसीलिए क्या होता है कि वो फ्लड कर जाता है वो एरिया। एंड इसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल: कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है एक्चुअली, तो आई थिंक आप इसको अगली क्लासेस में पढ़ोगे, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में। सो रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सर्फेस। सो व्हाट हैपेंस, जो रेनफॉल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है। सो इसके साथ हम लोग मतलब कंप्लीट कर लेते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के और भी फॉर्म्स, अभी देखो सिर्फ रेन के फॉर्म पे थोड़ी ना फॉल कर रहा है, अदर फॉर्म्स स्नो, स्लीट, यू नो हेल वगैरह भी आप लोग की जो फॉर्म्स है प्रेसिपिटेशन की, जिससे जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स है वो फॉल करता है अर्थ के सर्फेस पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। आई विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।